किसको जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब जिस हाउस में आया है, जो हाउस फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का काम है चार्ज लगाना। क्या लगाना? चार्ज। किस चार्ज पे? कैसे कैसे क्या इवेंट हुए, जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा पन्ना तैयार करेगा ये, और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। किसकी वोटिंग होगी? उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगी फर्स्ट हाउस में। क्लियर है? वोटिंग का जो मेजॉरिटी होगा वो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये ध्यान देंगे, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। A nominal executive. Second, a system of collective responsibility. A system of collective responsibility. Third, a bicameral legislature. लिख लिया? और डी है सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Constitution of India, under the Constitution of India, which is not a fundamental duty, to safeguard public property, to develop the scientific temper, the scientific temper, 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 to abide by the Constitution and respect its ideals. And last is to exercise the suffrage. To exercise the suffrage, SUFFRAGE. Last question. A constitutional government is one. A constitutional government is one which dash, which के बाद dash देंगे. First, places effective restriction
places effective restrictions, ऐसे restrictions on individual liberty, on individual liberty in the interest of state authority, in the interest of state authority. And second, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty, in the interest of individual liberty. Only one, option only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. You have written the question? Write the question. Last question. A constitutional government is one which dash 1 places effective restrictions, places effective restrictions, places effective restrictions on individual liberty, on individual liberty in the interest of state authority, in the interests of state authority. Second, places effective restrictions, places effective restrictions on the authority of the state, on the authority of the state in the interest of individual liberty, in the interest of individual liberty. Option only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. एक और अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा concentration of wealth, concentration of wealth violates first, option number 1, right to equality. B, DPSP, that is डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने शॉर्ट में लिखा दिया द DPSP. C, राइट टू फ्रीडम.
and D, the concept of welfare. The concept of welfare. सारे क्वेश्चन समझ में आ गया? कैन वी स्टार्ट द डिस्कशन? हैव यू ऑल completed? How many questions in total? 4. No question. What is the answer to the first question? So, I chose option A, both real and nominal executive. I chose option A, both real and nominal executive. हेलो, बाद में बात करेंगे। House of Lords, दो वहाँ पे real और nominal नहीं होता because वहाँ पे constitutional monarch है। Constitutional monarch, वहाँ से nominate किसने करा? पहला क्वेश्चन पढ़िए।
अपना अपना ऑप्शन आपने डाल दिया ना, हम वो स्टार्ट करें डिस्कशन ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक ही पढ़िए, कोई एक ही पढ़िए। The Indian parliamentary system differs from the British parliamentary system in that India has। तो एक जगह है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, इसको कंपेयर किया गया किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहने का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द लेजिस्लेचर। सिंपल, एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल किसको होता है? लेजिस्लेचर को होता है, ठीक है। अब हमने क्या क्या लिया है ब्रिटिश में? कैबिनेट सिस्टम लिया है, ठीक है, और एक ऐसा हेड ऑफ द स्टेट लिया है, एक ऐसा हेड ऑफ द स्टेट लिया है जो हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल हेड, है ना, ये नॉमिनल हेड है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो गया? डिफैक्टो हेड हो गया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? डिफैक्टो हेड है, जो कल मैंने चर्चा की थी। ये डिजर हेड और डिफैक्टो हेड है, ये कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो ये दोनों कॉमन है दोनों में, क्लियर है? तो ये आंसर नहीं होगा। चलिए सेकंड क्या है ऑप्शन? अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बता सकता है? कोई भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में का कोई भी एक सदस्य, मंत्री परिषद का कोई भी एक सदस्य, अगर वह कोई ऐसा एक्शन लेता है और उसके अगेंस्ट में सेंसर मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में कॉन्फिडेंस लूज कर गया है और पूरी सरकार रिजाइन कर देती है। गलती किया कौन? वन, लेकिन वो क्या समझा रहा है? पूरे सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। एवरीवन ओज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी विल सिंक एंड सेल टुगेदर। क्या बोलता है? वी विल सिंक एंड सेल टुगेदर। ये भी कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो ये दोनों कॉमन पॉइंट हुए, क्लियर है? थर्ड पॉइंट पढ़िए। थर्ड क्या है? बाई कैमरल। वहां पे भी दो हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस, और कॉमन्स और यहाँ पे भी दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। बचा क्या आपका? जुडिशियल रिव्यू। ये हमने कहाँ से लिया है? ये डिफरेंस कहाँ है? ये यूएस से लिया है। तो फर्स्ट थ्री नहीं होगा, फोर्थ विल बी योर आंसर, ठीक है। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 1998। 98 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। एक आदमी कोई पढ़िए, आपके अलावा आप पढ़ चुके हैं, अच्छा आपने नहीं, आप पढ़िए। संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कौन कौन सा है? पहला क्या है? भाई सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी तो करना ही है, मॉन्यूमेंट है, करना ही है पब्लिक प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? स्पष्ट से पढ़िए, समझ में नहीं आया। सेकंड क्या है? साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर भी बनाना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है? चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से समझें और समझाएं, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको साइंटिफिक, क्योंकि अब एडवांसमेंट, दैट मीन्स फंडामेंटल, इट इज आवर ड्यूटी टू थिंक इन एडवांस ऑफ, so that we fall in line with the cosmopolitan approach and we should not fall behind rest of the world. क्लियर है? तो ये एक ड्यूटी है, समझ में आया? तो क्या हो गया? सेकंड भी है, थर्ड आइए अब।
संविधान और उनके आदर्शों के प्रति समर्पित रहना है, बिल्कुल सही है। डी क्या है? सफ्रेज। सफ्रेज का मतलब राइट टू वोट, ये नहीं होगा। राइट टू वोट क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में राइट टू वोट था, मैंने इसको चेंज कर दिया और सफ्रेज कर दिया। यूपीएससी ने राइट टू वोट ही डाला था, मैंने इसको दूसरे ढंग से लिखा आपके लिए, फायदे के लिए, कि वो भी अगर आए तो आप डाल सकते हैं। तो राइट टू वोट को फ्रेंचाइज भी करते हैं और सफ्रेज भी करते हैं, दो अलग नाम से जानते हैं, फ्रेंचाइज एंड सफ्रेज। ठीक, दो क्वेश्चन हो गए ना, समझ में आ गया दो क्वेश्चन। चलिए तीसरे पे चलिए। थर्ड क्या है? आप पढ़िए, आप पढ़िए। क्या है? Constitutional government is one which first to places effective restriction on individual liberty in the interest of state authority. Second one, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. क्या लग रहा है आपको? पहले क्वेश्चन समझाइए। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक सरकार के बारे में। तो संवैधानिक सरकार कौन सी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। उसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के फंक्शन, गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी फंक्शंस को लिमिट करती है, ताकि वो आर्बिट्ररीली एक्सरसाइज नहीं कर सके। क्लियर है? इसको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। क्लियर है? तो अब उसमें क्या है, ऑप्शन क्या है? पहला पॉइंट places effective restrictions on individual liberty in the interest of the state authority. ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. ये दूसरा पॉइंट। प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इंडिविजुअल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगेगा? तो गलत हो जाएगा ना, ये तो स्टेट के इस पे कर रहा है। तो क्या आ जाएगा? प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ओनली 2 इज करेक्ट। 1 2 3 किसका सही हो गया? तीनों? 1 नहीं सही हुआ, सेकेंड 2 3 सही हो सबका। 1 में दिक्कत है, अच्छा ठीक है, 1 को घेरा कर दीजिए, बहुत प्रॉब्लमेटिक किया आप लोगों को, देखते हैं उसमें। अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा आंसर इसका? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। वेरी गुड। आर्टिकल 39C जो है डीपीएसपी हो जाएगा, इसको वायलेट करता है, क्योंकि वहां पे साफ लिखा है अवॉइडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ठीक है, 39C मैंने लिखवाया था, 39C देख लीजिएगा। तो डीपीएसपी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 4 में से कितना सही हुआ सभी लोगों का? 3 हो गया। वेरी गुड, गुड। 3 है तो सही। 3 किसका नहीं हो पाया? आपका कितना है? आप तो 2 ही लिखे ही है। 2 में कितना सही हुआ? 50%। आपका कितना? 1 सही हुआ। कौन सा? सेकंड वाला। आपका? हाँ सही हुआ, वेरी गुड। आपका? कौन कौन? तीनों सही हो गया। पहला सुनो, ठीक है। पहला जिसका सही नहीं हुआ उसको कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए पता है? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है और सोर्सेस को पढ़ लीजिए। क्लियर है? कुछ नहीं है, बहुत इजी है, वेरी इजी। एक बार दोहरा लेंगे आ जाएगा समझ। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क इज डिफरेंट थिंग। कंफ्यूजन हो गया। ये अब देखो, ये तो एक आराम वाला एटमॉस्फेयर है। एग्जामिनेशन हॉल में आराम नहीं होता है, वहाँ इतने सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। ये तो 4 ही क्वेश्चन है, तो और तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आज के टेक्स्ट पे। हम लोग चर्चा कर रहे थे इम्पीचमेंट की, आर्टिकल 61 की। एम आई राइट? सिस्टम ऑफ इलेक्शन हो गया था, इलेक्शन प्रोसीजर हो गया था, क्वालिफिकेशन हो गई। वेरी गुड। और अब इलेक्शन, ये इम्पीचमेंट बचा हुआ है। चलिए आर्टिकल 61 लिखिए। आर्टिकल 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट,
मैंने कुछ स्टेप्स कल बताए थे, कुछ याद है? देखो कुछ नहीं, सबसे पहले समझो, लिखना नहीं है अभी। हमें इम्पीचमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल होता है, लेकिन वर्ड रिमूवल हम लोग प्रेसिडेंट के लिए यूज नहीं करते, इम्पीचमेंट का था। इसका हिंदी होता है महाअभियोग, महाभियोग, ठीक है। तो ये किसका है? राष्ट्रपति महोदय का, महामहिम का है। अब चार्ज क्या लगता है इनमें, पहले ये समझेंगे। अच्छा, ये हम लोग आर्टिकल 61, ये किस तरह का चार्ज लगता है इसमें? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का उल्लंघन। द ओनली चार्ज which is put in this case constitutionally is the violation of the constitution. तो यहाँ पे लिख देंगे violation of the constitution. यहाँ तक क्लियर है? अब पहला स्टेप ये है कि जो प्रस्ताव लाता है आदमी, वह सदन में लाएगा, चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, है ना। तो ये किसी भी सदन में लाया सकता है। क्या है ये? प्रपोजल कैन बी ब्रॉट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अभी लिखना नहीं, समझना है। प्रपोजल जो है वो किस हाउस में आएगा? किसी भी, चाहे वह लोकसभा हो या यहां पे एक कंडीशन क्या है कि इफ इट इज ब्रॉट इन द राज्यसभा और लोकसभा, द फर्स्ट हाउस विल आइदर बी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। पहला हाउस या तो राज्यसभा हो सकता है या लोकसभा हो सकता है। कंडीशन ये है कि मान लिया जाए कि लोकसभा में ही आया, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर, लोकसभा के 1/4 मेंबर मस्ट गिव इन राइटिंग। ये सबसे पहला है। किसको देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अपने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दिया 25%, 1/4 साइन करके कि मेरी मंशा है ये काम करने की, ठीक है। क्लियर है यहां तक? वो जैसे ही देखेगा, ओके करेगा, दैट मीन्स ही इज सर्टिफाइंग दैट 1/4 मेंबर हैज डिक्लेयर देयर इंटेंशन टू ब्रिंग दिस रिजोल्यूशन। समझे बात को? 1/4 of the member has declared their intention to bring this resolution, and the resolution what it seeks? Removal of the impeachment of the President of India. Clear है? तुरंत 14 दिन की नोटिस चली जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा? 14 डेज नोटिस। किसको जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब जिस हाउस में आया है, जो हाउस फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का काम है चार्ज लगाना। क्या लगाना? चार्ज। किस चार्ज पे? कैसे कैसे क्या इवेंट हुए, जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा पन्ना तैयार करेगा ये, और उसके बाद उस पे वोटिंग होगी। किसकी वोटिंग होगी? उस रिजोल्यूशन पे वोटिंग होगी फर्स्ट हाउस में। क्लियर है? वोटिंग का जो मेजॉरिटी होगा वो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये ध्यान देंगे, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। क्लियर है? अगर उस दिन नहीं आया बीमार पड़ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हाउस में टोटल सदस्य कितने हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, क्या है? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये ध्यान रखेंगे। ये वोट करेगा। अगर ये इस मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास हो गया तो ये समझा गया कि चार्ज जो है वो स्टैंड कर गया है। क्लियर है?
अब चला जाएगा किसमें? सेकेंड हाउस में. अब नाउ सेकेंड हाउस विल इन्वेस्टिगेट द चार्ज. Second house will investigate the charge, and here the president gets the opportunity to defend himself. Represent himself. Either through a lawyer he can represent, or personally, those charges he has to be given scot-free when he convinced. When he convinces all, then he is given scot-free. लेकिन otherwise, if it happens otherwise, अगर ये उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? He has failed to convince. The man has not proved himself as expected. So what will happen? Again voting will take place. Again voting will take place. उसी में, सेकेंड हाउस में. समझ में आया? हाँ, वो वही वोटिंग होगी उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे फर्स्ट हाउस पे हुई थी. 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. अगर वो वोटिंग पास हो जाता है, द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड फ्रॉम दैट डेट सेल्फ. समझ में आ गया? द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड फ्रॉम दैट डेट सेल्फ. अब ये एक बार लिख कोशिश कीजिए, सारे पॉइंट्स को पॉइंट में बनाइए. देखिए कितना पॉइंट आपको याद रह पाता है.
सर 1/4 जब लेके आएंगे रिटर्न में और अपने हाउस लीडर को देंगे नोटिस, उसके बाद 25% का करेंगे, 2/3 ये क्या करेंगे, वोट करेंगे दिमाग से नहीं। हाँ वही। देखो पहला स्टेप जो है वो ये है कि 25% यानी 1/4 of the member has declared their intention to bring the resolution. I mean, that means proposal of resolution will be entertained only after the presiding officer has verified that 1/4 of the member has declared its intent by signing that. Clear है? याद क्लियर हो गया ना? 2/3 जो अब मेंबर जो बचे हैं वहाँ पे वो भी होंगे जो 1/4 वाले होंगे, उन पूरे में से और टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 2/3 वो वोट करेगा। वो क्या करेगा? इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगी। कितना मेजॉरिटी चाहिए? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये दोनों ही हाउस में चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अपने पॉइंट्स चेक कर लीजिए, मैं बोलते आता हूँ, देख लीजिए पॉइंट। पहले है द प्रपोजल टू इम्पीच द प्रेसिडेंट कैन बी ब्रॉट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहला पॉइंट नंबर 1 क्या लिखना है? द प्रपोजल टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। The first house will declare its intention by signing it at least 1/4 of the house and getting it certified by the presiding officer. Thereafter 14 days notice will be served to the President of India. Then after 14 days we will be bringing the resolution to impeach you. Clear? पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्लियर? 3 पॉइंट हो गया ना? फोर्थ, what is the fourth point? The required majority of the voting, then the first house will level charges. First house will level charges, and the discussion thereafter, the voting will take place. And the proposal has to be passed by not less than 2/3 of the total membership of the house. Then it goes to the other house.
And the other, what other house does? So same will be 2/3 of the What the other house does? Other house investigate the charge. investigate. Investigate the charge. Thereafter, in this case, president comes or is represented by a lawyer of his choice to defend and prove his innocence. Clear? If he succeeds in doing so, still there will be a voting on the resolution, right? Let's say some of the members gets convinced, some of them may not. So it will be declared only after the voting, whether he has succeeded or not, right? And the pattern of voting, required majority will be the same, 2/3 of the total membership of the house. The date on which it is passed, it is deemed that president has been impeached. Clear हो गया? क्या हो? ये तो रोज का ही है। तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट में क्या कर लिया? सर उनका impeachment कर लिया, qualification कर ली, election procedure कर लिया, system of election कर लिया. वेरी गुड। अब राष्ट्रपति महोदय को कितनी सैलरी मिलती है? 5 लाख। ये पहले से ही जांच कर लिया, ये 5 लाख तो मिलता ही नहीं, इसका ध्यान सैलरी पे ही है। वेरी गुड, सही बात है। लिख लीजिए। यहाँ पे heading क्या लिखनी है? इसमें लिखिए कंडीशंस टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। जी लिख लिया। कितना है? इसके पहले कितना था? 1.5 लाख। 1.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? कब किया? 2018 में। ऑफिशियल रेजिडेंस भी मिलता है, राष्ट्रपति भवन। रेंट पे करना पड़ता है? नहीं, रेंट नहीं पे करना पड़ता, तो यहाँ पे रेंट नहीं पे। अच्छा, इनके अलाउंसेस बेनिफिट्स कौन तय करता है? पार्लियामेंट। वेरी गुड। इट इज ऑल emoluments, benefits are decided by the parliament. Privileges सारा। अच्छा, ये इनका टर्म क्या होता है? कितने साल तक के लिए? अगर ये चाहे री इलेक्शन तो हो सकते हैं, कितनी बार? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड। लिख लीजिए। ही कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम। यूएस में सर ऐसा नहीं है। यूएस में, हाँ, वहाँ 2 ही बार। ये भारत है, ये इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। अगर ये रिजाइन करेंगे तो किनको देंगे? लिखिए, ही विल सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये शपथ ग्रहण लेते हैं तो कौन कराता है इनकी शपथ ग्रहण? ओथ। और सीजीआई नहीं रहेंगे तब सुप्रीम। लिख लीजिए।
every elected president must take oath before entering his office. Must take oath before entering his office in the presence of CJI, Chief Justice of India. Or in his absence, the senior most judge of the Supreme Court. क्लियर है? इनकी ऑफिस में वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? ये रिजाइन करेंगे तो होगा, डेथ होगा तो इनका होगा, इम्पीच कर देंगे तो हो जाएगा. लिखिए तीनों पॉइंट. वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. टॉपिक है वैकेंसी कॉज इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. फर्स्ट है ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. अगर इनका टेन्योर खत्म हो गया तो, जो सबसे नॉर्मल बात है. सेकेंड, बाय हिज रेजिग्नेशन. बाय हिज रेजिग्नेशन. थर्ड, बाय इम्पीचमेंट. Next, death. और एक और है when he is declared disqualified for the office. When he is declared disqualified for the office or when his election is void. उसके इलेक्शन में ही डिस्प्यूट है. कौन तय करेगा? If there is a dispute in the election of the president, whose decision will be the final? Who will decide upon the dispute in the election of the president? The only entity is Supreme Court of India. लिख लीजिए. Only Supreme Court is empowered to decide upon the dispute that may arise regarding the president's election. एक बार पॉइंट देख लीजिए सारा प्रेसिडेंट के, फिर चलेंगे प्रेसिडेंट के पावर पे. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. कोई दिक्कत यहाँ तक? तो समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहला फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर.
व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव पावर? उसको execute करने की power होनी चाहिए। उनके पास power होती है किसी चीज़ को execute कर सकें, order ला सकें। Here, executive power means power of appointment. किसको किसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है? पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या लगता है, पहले आप लिखिए किस किस को अपॉइंट करते हैं, मैं देखूं कितना लिख पाएंगे हम। ट्राई योर ओन। क्या प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे? यस और नो? क्या अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम? तो पहला क्या हो गया, प्रधानमंत्री, और सेकंड क्या है, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। क्लियर? क्या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को करेंगे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जजेस हो गया तो सब जजेस ही हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करेंगे? क्या कैग को करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को? बिल्कुल करेंगे। क्या अटॉर्नी जनरल को करेंगे? इनको भी अपॉइंट करेंगे। क्या यूपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स को करेंगे? यस और नो? बिल्कुल करेंगे। सब लिख लीजिए। उसी तरह फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सर यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल को भी करते हैं, अटॉर्नी जनरल को भी कर रहे हैं। देखो, सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। अटॉर्नी जनरल इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। दे रिपोर्ट टू additional solicitor general and solicitor general. They work under attorney general. और नीचे नोट लिख लीजिएगा, all executive powers are carried out in his name. All executive powers of the union vests in the President of India.
vests in the President of India. यहाँ पे फेडरल सेटअप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बॉडी आती है, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, उसको भी अपॉइंट करते हैं, ये लिख लीजिए। ही ऑल्सो अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल। फॉर फेडरल कॉर्पोरेशन, फॉर फेडरल कोऑपरेशन। क्लियर है? तो एग्जीक्यूटिव पावर समझ में आ गया? All executive powers are exercised in his name, though they are exercised by the Council of Ministers, headed by the PM. Since he is the de jure head of India, so name will be always the President of India. Clear है? अब आइए इसके लेजिस्लेटिव पावर पे। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79। क्या प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट के या अलग है? क्या लगता है आपको? ही इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 में ये कहा गया है पार्लियामेंट जो है वो 3 एंटिटी से बना है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों एंटिटी से क्या बना है? और ये कहाँ कहा गया? 79। कोई बात नहीं। तो प्रेसिडेंट इज वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब जब पार्लियामेंट के पार्ट हैं और हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं इसकी लेजिस्लेटिव पावर का, तो क्या कोई भी कानून जो पार्लियामेंट में बनेगा बगैर इनके साझेदारी से बन सकता है? बगैर इनके इन्वॉल्वमेंट से बन सकता है? कोई भी बिल जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है लॉ बनने की प्रक्रिया में, एनी बिल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट with the purpose of making a law will be enacted only when it receives the accord or assent of the President of India. Before that, it will not be. Clear? So, since he is the integral part of the parliament, so we have to understand this. The bill is passed by the 2 houses of parliament, and then it goes to the President. Now, there are certain options before the President, which we will discuss later on. But first here, we have to understand कि no bill can become an act. So सबसे पहला पॉइंट ये लिखिएगा legislative power में, no bill can become an act without the approval of the President. Clear है? No bill can become an act without the concurrence, without the accord, without the assent of the President. Point number 2. He has the power to summon, SUMMON.
ही हैज़ द पावर टू समन। फिर लिखिए, ही हैज़ द पावर टू डिसॉल्व। दी लोकसभा, डिसॉल्यूशन सिर्फ लोकसभा में लिखेंगे, ही हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। लेकिन समन और एक वर्ड आता है प्रोरोग, PROROGUE, प्रोरोग। प्रोरोग करने का मतलब ऐसा है कि हम सेशन को लंबा किए, डिसॉल्व नहीं किए उसको, ठीक है। प्रोरोग मीन्स एक्सटेंशन ऑफ द सेशन, क्लियर है? तो लिख लीजिए प्रोरोग, पावर टू प्रोरोग, पावर टू समन, पावर टू डिसॉल्व। डिसॉल्व को सिर्फ लोकसभा करेगा, लेकिन ये समन और प्रोरोग तो दोनों सभाओं का हो सकता है। प्रोरोग और समन कहाँ करेगा? दोनों हाउस में। और यहाँ पे डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा करेगा। क्लियर है? अब पावर टू कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग, पावर टू समन कर दो या कॉल कर दो अ जॉइंट सिटिंग। In case of a deadlock, in case of a deadlock, DEADLOCK, in case of a deadlock, ठीक है, क्लियर है? He can send a message, लिखिए, he can send a message to the parliament regarding passing of the bill. Sorry, regarding a pending bill. Passing, regarding a pending bill. अब हम लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों के कार्यक्रम सुचारू रूप से चल पाए इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो उसके लिए स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स बनाते हैं, ठीक है, ये भी क्या, तो ऐसा लिखित संविधान में लिखा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि डेडलॉक है, तो डेडलॉक के लिए हम लोग ज्वाइंट सीटिंग करते हैं। तो ज्वाइंट सीटिंग के लिए अब प्रिसाइड कौन करेगा, या इवन इंडिविजुअल हाउसेस में प्रिसाइड कौन करेगा? अगर मान लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, वहाँ पे भी राज्यसभा में भी डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, तब कौन, तो वहाँ पे कौन प्रिसाइड करेगा हाउस में? तो वो एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? जब यूजुअली क्या होता है, जो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होता है, डे टू डे बिजनेस, उसका सुचारू रूप से परिचालन कौन करता है? उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। लेकिन अगर वो एब्सेंट है किसी कारण से, या वैकेंसी कॉज हो गया ऑफिस में, और उसके बाद उसका जो दूसरा अधिकारी है सबऑर्डिनेट, वो भी एब्सेंट है, both of them are not there, then a person who is appointed for this purpose by the President of India, he does so, वो करता है। क्लियर है? तो लिखिए यहाँ पे, तो एमपी हो सकता है। हाँ हाँ, उसी में से, हाँ उसी में। क्या लिखा अभी? इन केस, देखिए, in case any of the presiding officers
is not there and vacancy is caused. And vacancy is caused. So in that case, president can appoint any member from the Lok Sabha and from the Rajya Sabha so that he can preside over and conduct the normal business of the house. Clear है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए उसको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर में एक होता है पावर ऑफ नॉमिनेशन। तो राज्यसभा में 12 व्यक्ति को ये नॉमिनेट करता है। ही नॉमिनेट्स 12 पर्सन्स इन द राज्यसभा। अब कहाँ किस किस क्षेत्र से? एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, है ना। तो ये लिख लीजिए, ही नॉमिनेट्स 12 पर्सन टू द राज्यसभा from the fields of science, art, literature and social service. Science, art, literature and social service. क्लियर है? बहुत ही आसान पॉइंट है। क्लियर है? अब 2 सदस्य पहले ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के करते थे, जिसको कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब वो नहीं करते हैं, करती हैं, अब ये नहीं करेंगी। 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2 व्यक्ति को जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव
एक्चुअली प्रेसिडेंट को पहले ये चेक करना था कि आंग्ल भारतीय समुदाय से देखना था कि लोकसभा में दे आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड और नॉट. If the president is satisfied that they are not adequately represented, then he was empowered by the Constitution of India to nominate 2 persons to the Lok Sabha. Even that process got discontinued. ये practice अब खत्म हो चुका है. किस अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, by which amendment act? 128. हाँ रिसेंटली हुआ है 20 में. लिखिए by 128th Constitutional Amendment Act. The practice of nomination of 2 persons, the practice of nomination of 2 persons from Anglo-Indian community, to the Lok Sabha got discontinued. क्लियर है? ये क्लियर हो गया? तो पावर ऑफ नॉमिनेशन अब कितना रह गया उनके पास? सिर्फ 12. अब यहां पे 2 और इंपॉर्टेंट पावर है जिसको लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं. एक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और दूसरा है वीटो पावर. क्या है? वीटो पावर और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है पहले समझ लीजिए. ऑर्डिनेंस की हिंदी होती है अध्यादेश. क्या होती है? अध्यादेश. सो ऑर्डिनेंस ऑल्सो फंक्शंस एज अ नॉर्मल लॉ, बट ऑर्डिनेंस इज प्रोक्लेम्ड when the houses are not in session. When the houses are not in session. जब रेसेस चल रहा है, रेसेस का मतलब समझते हैं ना, हॉलीडेज चल रही है, और तब अगर इन द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में जरूरी हो गया कानून बनाने का, संसद की दोनों सदन तो है नहीं, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा का सेशन नहीं है, तो उस बीच का पीरियड है. यूजुअली क्या 3 सेशन होते हैं. सबसे पहला क्या होता है? बजट सेशन, उसके बाद मानसून सेशन, उसके विंटर सेशन. ये 3 होता है. इस बीच में अगर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से हम कानून लाते हैं. प्रक्रिया ये है. क्लियर है? तो लिखिए यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. When the house is not in session, then President of India is empowered by the Constitution to proclaim ऑब्लिक प्रोमुलगेट कर दो. प्रोक्लेम ऑब्लिक प्रोमुलगेट, PROMULGATE. ऑब्लिक प्रोमुलगेट एक वर्ड है. प्रोमुलगेट जारी करना.
promulgate ordinance, ORDINANCE, under Article 123, 1 2 का 3, under Article 123 of the Constitution of India. क्लियर है या नहीं? अब आइए वीटो पावर पे। वीटो का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वोट। वीटो मीन्स नेगेटिव वोट। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया has 3 different kinds of veto power. The President of India has 3 different kinds of veto power. कोई बता सकता है कौन कौन सा veto power है? देखो क्या होता है, एक कंडीशन ये है कि बिल है, ऑर्डिनरी बिल पास हो रहा है, साधारण विधेयक, पैसे से कोई लेना देना उसको नहीं है। क्लियर है? दोनों हाउस से पास हो गया, राष्ट्रपति महोदय के पास आया, और राष्ट्रपति महोदय जो है अब विचार करके बताएंगे। अब वो उनको, ही हैज नॉट डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन, हाँ क्या है, नहीं है, कुछ नहीं, उसको अपने पॉकेट में रख लिया। दैट मीन्स द फेट ऑफ द बिल इज सील्ड। फेट ऑफ द बिल इज सील्ड। President, without having to declare his intention, and that too for the indefinite period of time, and that too for the indefinite period of time. So that is called pocket veto. समझ लो फिर से। In a situation where the ordinary bill is passed by the 2 houses of parliament and is brought before the president, sent to the president without declaring his intention, whether to sign the bill, whether to withhold the bill, he has not declared any intention. And he kept the bill for an indefinite period of time. It goes without saying that President of India has declared his pocket veto on that particular subject of the bill. Clear है? समझ में आया? तो ये हुआ पॉकेट वीटो। क्या हुआ ये? पॉकेट वीटो। पॉइंट नंबर 2, तो ये लिखिए, सबसे पहले लिखिए, ये लिख के दिखाइए। तो ऑर्डिनरी बिल, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिल लिखेंगे। पॉकेट वीटो मनी बिल में नहीं होगा, पॉकेट वीटो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होगा। किस में होगा? ओनली ऑर्डिनरी, साधारण विधेयक में होगा, ऑर्डिनरी बिल में होगा।
क्लियर है? क्या समझे? वीटो का मतलब नेगेटिव वोट हो गया, क्लियर है? पॉकेट वीटो का मतलब क्या हुआ? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डिक्लेयरिंग हिज इंटेंशन, राइट? क्लियर? अभी कितने तरह का अभी ऐसा समझो, कितने तरह का वीटो होता है पहले समझो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों, कौन कौन से हैं? पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। क्लियर? क्लियर? जब सस्पेंसिव वीटो लगाता जाता है तो ही कैन सेंड द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस। पुनर्विचार करने के लिए दोनों सदनों के पास जब वापस भेज दिया गया हो तो उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंसिव वीटो। क्लियर है? तो सस्पेंसिव वीटो का लिखिए परिभाषा में। तो व्हेन द बिल इज सेंट back for the reconsideration of the houses, क्लियर है? क्या समझे? क्या ये मनी बिल में हो सकता है? यस, किस में होगा? सिर्फ क्लियर हो गया? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हो सकता है? नहीं हो सकता। 24th अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट ऑब्लाइज्ड हो गया साइन करने के लिए। किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1971। तो कौन वीटो पावर में हम लोग कितना क्या पढ़ लिए अभी? क्लियर है? अब आइए एब्सोल्यूट वीटो पे। एब्सोल्यूट वीटो समझने के लिए एक परिचर्चा करते हैं इस इलेक्शन का ही। मान लीजिए एनडीए गवर्नमेंट इसके पहले एनडीए 2 में कुछ बिल पास की होती जो 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो चुका होता और अवेटेड था प्रेसिडेंट का साइन के लिए। समझ में आ रहा है? दोनों हाउस से पास हो चुका था और वैसा बिल, एक काल्पनिक सिचुएशन लेते हैं कल्पना के आधार पे, और वो राष्ट्रपति महोदय का मुहर उसमें नहीं लगा और इसी बीच इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया और इलेक्शन हो गया। और मान लीजिए मोदी जी हार गए होते और एनडीए गवर्नमेंट नहीं होती, कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई होती यहाँ पे, वो केस मानते हैं। तो कांग्रेस सरकार यानी प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर होते, उनकी सरकार जब बनती मान लीजिए, तो वो क्या कहते राष्ट्रपति महोदय को कि आप वो सारे बिल जो पेंडिंग हैं आपके एसेंट नहीं लगे हैं, अब सरकार हमारी है, आपको काम किससे सलाह मशवरा से करना है? मोदी जी की नहीं, मेरे मशवरा से, यानी कि राहुल गांधी की मशवरा से। एक एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा एक्स या वाई एडजस्टमेंट, तो एक्स जो आया वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति महोदय को, कि आप एब्सोल्यूट वीटो लगाकर वो उसको खारिज कर दीजिए। किसको? पहले वो सारे बिल जो कि 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो चुके थे।
और राष्ट्रपति तो वही करेगा जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह प्रसाद रूपेण कार्य करेंगे। तो वहाँ पे वो एब्सोल्यूट वीटो लगा के वो सारे बिल को कैंसिल कर देंगे। समझ में आया या नहीं? फिर समझो, इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुका है और इलेक्शन होगा अब, और संसद के पास समय नहीं है कि वो बिल, संसद तो अपना काम कर रही है, राष्ट्रपति महोदय उसको अपना मुहर नहीं लगाए, तो वो एक्ट नहीं बन पाया किसी कारण से। दैट मीन बट दो टू हाउसेस हैव पास दी बिल, दोनों हाउस ने बिल को पास कर दिया है। लेकिन बदल चुकी सरकार, इलेक्शन हुआ, सरकार एक्स था, अब वाई आ गया। तो वाई वाला सरकार का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति महोदय को सलाह दे रहे हैं कि आप वो दोनों बिल या 4-5 बिल जो भी हैं, मालूम है कौन कौन सा बिल पास हो चुके, हम भी थे विपक्ष में ना, अब आ गए सत्ता में, वो सारे बिल जो पास हुए उसको आप खारिज कर दीजिए अपना एब्सोल्यूट वीटो लगाकर, और राष्ट्रपति महोदय वही काम करेंगे जो उन्हें से कहा जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट वीटो हो गया। लिख लीजिए अपने से। यहाँ पे एक बात और जानकारी होना ज़रूरी है कि जो बिल जिस पे एब्सोल्यूट वीटो लगेगा, वो सारे बिल जो पास हो गए थे, क्लियर है, वो प्राइवेट मेंबर बिल पे ही लग सकता है। अब दो तरह की बिल होती है यहाँ पे, जब हम लोग पढ़ेंगे बिल्स एंड मोशन तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी समझ लो, एक बिल वो होती है जो गवर्नमेंट बिल कहलाता है, एक बिल होती है प्राइवेट मेंबर होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? जो मंत्री प्रस्तुत करे, मेंबर ऑफ दी गवर्नमेंट, सरकार का सदस्य ना, मंत्री है, मंत्री परिषद में कोई खड़ा होकर बिल प्रस्तुत कर दिया वहाँ पे, तो वो कहलाएगा गवर्नमेंट बिल। मंत्री के अलावे अदर देन मिनिस्टर, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। क्लियर है? वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो प्राइवेट मेंबर बिल हैं और ये संविधान में है कि वो एब्सोल्यूट वीटो अगर लगाना होगा तो सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल के ही लग सकते हैं। In case of only private, that means absolute veto can be exercised only in case of a private member bill and not in case of a government bill. Clear है? क्लियर है बेटा? सभी लोग क्लियर हो गया? तो क्या क्या पढ़ लिया आज हम लोग? वीटो पावर हो गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गया,
और क्या हो गया? अच्छा, मान लिया जाए कि प्रेसिडेंट ने एक बिल को पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया। क्वेश्चन यहाँ ये है, दोनों हाउस से पास हुआ, ऑर्डिनरी बिल है, और सस्पेंसिव वीटो लग गया। क्या लग गया? सस्पेंसिव वीटो, यानी कि दोनों हाउस फिर से कंसीडर करेंगे उसको। और ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी जो था पहले, उसी हिसाब से चलता है काम। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि, अच्छा यहाँ पे दो प्रश्न है। एक, तब राष्ट्रपति महोदय, ये फिर बिल पास हो गया राष्ट्रपति के पास, आप लोग बोले एक बार देख लीजिए, आप लोगों ने देख लिया, फिर भेज दिया, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा ना? नहीं समझी बात को? फिर तो मेरे पास आएगा। अब वो राष्ट्रपति के पास, एक्स के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या उसको खारिज कर सकते हैं, या उसको साइन करना ही होगा? हाँ? नहीं, अगर दोबारा वो आ जाता है, अगर दोबारा मेरे पास आ जाता है, किसी के पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है, तो उसे साइन करना ही होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैं इसलिए ये बोला, एक तो ये केस समझाना था आपको कि इट इज ऑब्लिगेटरी बिफोर द प्रेसिडेंट टू साइन दैट बिल, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज, इन यूएस व्हाट हैपेंस दैट second time when it will be presented ever before the President of India, it should be by a higher majority. It should be by a higher majority. जिस मेजॉरिटी से पास हुआ था, अगर दोबारा उसको प्रस्तुत किया जा रहा राष्ट्रपति के पास, पास होने के बाद दोबारा, तो वो जो मेजॉरिटी सेकेंड टाइम होगी वो फर्स्ट टाइम से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी को हम लोग कहते हैं यूएसए में क्वालिफाइड वीटो। क्या कहते हैं? क्वालिफाइड वीटो। समझ में आ गया? यही से बताना था। तो वीटो पावर के बाद हम लोग चलेंगे जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लिखिए, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सर, ये वीटो वाली जो थी तो लेजिस्लेटिव में आई ना? क्या बोले? वीटो पावर जो थी लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर। हाँ sure। भाई हम लोग लॉ मेकिंग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो लेजिस्लेटिव पावर हो गया। तो अब लेजिस्लेटिव पावर कितने हो गए राष्ट्रपति महोदय के पास? पहला, पावर ऑफ समन, पावर ऑफ प्रोरोग, पावर ऑफ डिसॉल्यूशन, ठीक है, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, पावर टू अप्लाई वीटो। क्लियर है? पावर टू पुट फाइनली असेंट टू द बिल, सब सारे। नॉमिनेट, वेरी गुड, नॉमिनेट, ये सारे हो गए आपके राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, विधायी शक्तियां, ठीक है। और पहले जो पढ़े थे वो क्या था? कार्यपालिका संबंधी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। अब क्या पढ़ेंगे? न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। टॉपिक दीजिए, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें 4 प्रकार के टेक्निकलिटीज बताई गई है, यानी किस किस कंडीशन में माफीनामा हो सकता है। जुडिशियल पावर में पार्डन सबसे पहले आता है ना? क्या आता है? पार्डन। तो इसको सबसे पहले लिखिए, आर्टिकल 72 के तहत डिफाइन किया गया है। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट
the pardoning power of the president is mentioned under Article 72 of the Constitution of India. And there are five different cases that deals with the pardoning power of the president. पहला है पार्डन, PARDON, पहला ही है पार्डन। पार्डन शब्द कहने का मतलब ये होता है कि वो दोषी के समस्त दोषों को समन कर देता, खत्म, पापों से मुक्त, दोषों से मुक्त, ऑल एलिगेशंस, ऑल चार्जेस आर नलिफाइड। क्लियर है? तो लिख लीजिए सबसे पहले पार्डन में ऑल चार्जेस, ऑल ब्लेम्स, द पर्सन इज एब्सॉल्व्ड, ABSOLVED, दोष मुक्त हो जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सॉल्व्ड, ABSOLVED, एब्सॉल्व्ड। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो बनी थी राष्ट्रपति महोदया, बहुत लोगों को किया था उन्होंने क्षमादान, और क्षमादान 30 कन्विक्ट्स को किया था, 30 लगभग, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पार्डन के बाद आता है कम्यूटेशन, COMMUTATIO, कम्यूटेशन। गया एप्लीकेशन राष्ट्रपति महोदय के पास, तो अब तो इसको डेथ सेंटेंस मिल गया ना, किसको मिल गया? डेथ सेंटेंस, अभियुक्त को मिल गया डेथ सेंटेंस। वो अपील किया, लास्ट में जाएगा महामहिम के पास, देख लीजिएगा। तो महामहिम ने क्या किया कि डेथ सेंटेंस को चेंज कर दिया, थोड़ा लाइटर कैरेक्टर बना दिया, ठीक है, या कह लो कि रिगरस था, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास था तो उसको सरल कारावास में कर दिया, रिगरस को सरल कर दिया। तो ये सब क्या है? लाइटर कैरेक्टर है। क्या है? लाइटर कैरेक्टर। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेशन। अब मौत को आजीवन कारावास तो लाइटर ही हुआ ना, जिसको टू बी हैंग टिल डेथ मिल गया उसको आजीवन कारावास, तो लाइटर कैरेक्टर है। तो लिख लीजिए कम्यूटेशन में रिडक्शन ऑफ ए सेंटेंस, रिडक्शन ऑफ ए सेंटेंस बाय चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, रिडक्शन ऑफ ए सेंटेंस बाय चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। डेथ नहीं मिला, रिगरस मिल गया, रिगरस था सिंपल हो गया, समझ में आया? ये क्या हो गया? कम्यूटेशन। उसके बाद रेमिशन, REMISSION, रेमिशन।
रेमिशन है कि कैरेक्टर वही है, टर्म घट गया। रिग्रेस तो रहेगा ही, पत्थर तो तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन 10 साल तक अब पत्थर नहीं, 5 ही साल तक तोड़ोगे पत्थर। क्लियर है, समझ में आ गया? तो क्या होगा ये रेमिशन। विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर यू हैव जस्ट रिड्यूस द टर्म ऑफ द सेंटेंस। Without reducing the character, you have just reduced the term of the sentence. तो पहला क्या था? पार्डन। दूसरा क्या है? कम्यूटेशन। तीसरा क्या है? रेमिशन। उसके बाद रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब रिलीफ होता है। ओल्ड एज, सिकनेस, प्रेगनेंसी, ये सबको ध्यान में रखा जाता है और लाइटर सेंटेंस दिया जाता है, दया दृष्टि दिखलाई जाती है। क्लियर है? तो लिख लीजिए, रेस्पाइट मीन्स राहत, अ पीरियड ऑफ रिलीफ और रेस्ट, especially under the consideration of sickness, old age, pregnancy. क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया। तो कौन कौन सा हुआ? पहला पार्डन, सेकेंड इज कम्यूटेशन, थर्ड इज रेमिशन, फोर्थ इज रेस्पाइट, नाउ इज रिप्राइव, REPRIEV, रिप्राइव। अब मान लो किसी को 10 साल की सजा हो गई। 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है ना, और ये बोला मान्यवर ऐसा है कि कुछ लगता है अगर मुझे समय दिया जाए तो मैं इस तथ्य को निकाल लूँगा कि मैं इनोसेंट हूँ, गलत, मेरे साथ गलत हुआ है, और साक्ष्य जो एविडेंस जो खत्म हो गया था उस एविडेंस को ला के हम प्रूव कर सकते हैं। तो बोला अच्छा ठहरो, रुक जाओ, मिल जाएगा रिलीफ। तो अपना सेंटेंस उन्होंने सुनाया नहीं, टेम्पररी क्या किया, उसको होल्ड पे डाल दिया, टेम्पररी पुट ऑन होल्ड। ये कब होगा? जब कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ में कोई एरर है, ऐसा समझा जा रहा है, उनको ये प्रेसिडेंट के संज्ञान में है। इफ ही फील्स लाइक दैट then he can give that relief. Temporary conviction को रोक दिया गया। लिखिए, temporarily conviction is put on hold. Temporarily conviction is put on hold. ये किस लिए? To enable the convict, to enable the convict to seek legal remedies, to seek legal remedies। कोई लॉयर सलाह दिया कि इसको इस ढंग से कर दीजिए, तब तक हम लोगों को समय मिल जाएगा, हम और देखते हैं, कई और लोगों से परिचय करते हैं, कुछ तुम्हारा हो जाएगा, लगता है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? लास्ट क्या हो गया? रिप्राइव, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्राइव। ये 5 हो गया। ये 5 क्या कहलाए? जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है?
गवर्नर के पास भी है, हम लोग उसमें ही पढ़ेंगे, वो स्टेट लॉज में वो कंसिडर करेगा। लेकिन उसके पार्डन में पार्डनिंग पावर उसके पास भी, ये सारे पावर हैं उसके पास, लेकिन अंतर क्या है? द पावर टू एब्सॉल्व द डेथ सेंटेंस, बात को, मौत की सजा माफ करने की पावर उसके पास नहीं, वो सिर्फ महामहिम के पास है। क्लियर है? The power to pardon the death sentence lies only with the President of India. It doesn't lie with the governor states, though governor has the pardoning power in other cases. ठीक है? क्लियर है? तो हम लोग यहां तक क्या क्या पढ़ लिए? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर। अब आपके एक और पावर इंपॉर्टेंट बचे हैं, एक दो इंपॉर्टेंट, मिलिट्री पावर। लिखिए, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, और उससे भी ज्यादा इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। और एक और है फाइनेंशियल पावर्स। कितने हो गए? कौन कौन? मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, फाइनेंशियल पावर्स, और यहां पे इमरजेंसी पावर्स। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करना है, एंड ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, तो कौन सा पावर हो गया? और ऑल वॉर्स आर डिक्लेयर्ड इन हिज नेम एंड ऑल पीस इज कंक्लूडेड इन हिज नेम, कौन सा पावर हो गया? मिलिट्री पावर। बस। इंटरनेशनल ट्रीटीज आर साइंड इन हिज नेम, डिप्लोमेटिक पावर हो गया। इसमें बस छोटा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मेनली इसमें इमरजेंसी और फाइनेंशियल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी एक बार पुनः देख लीजिए, सारा देखिए और पूछिए क्वेश्चन। यू डोंट रेज क्वेश्चन, दैट इज ट्रबलिंग मी। Whatever has been discussed in the class today, you all should be keen enough to raise questions. बताओ। Judicial power is absolute or is there to certain limitations? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दीज आर द कंडीशंस, एंड इट इज लेफ्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट दोज कंडीशंस, इफ इट मैचेस, right, then he may, he will, it is not given, he may, ठीक है? That means possibility lies. This is 100% correct, that possibility lies. It's not that you cannot rule out the possibility is there 100%. Possibility cannot be ruled out, it's very much there in the constitution, that's why we are studying. जो पार्डन वाला केस, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को कोई हो जाए कि उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो प्रेसिडेंट उसको कर सकता है। अब गया था उसका, क्या नाम था उसको, जो ताज में जो है, कसाब, हाँ कसाब, हाँ कसाब, तो गया तो उनके पास भी था, लेकिन इतना जघन्य अपराध था कि उसमें, ठीक है, तो उनके पास गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, नो। प्रिजनर ऑफ वॉर है सर, अगर उसे रिलीव करना, हाँ प्रिजनर ऑफ वॉर, हाँ, तो वो सब भी मिलिट्री पावर में होगा। इसमें अगर पार्डन में आ सकता है, लिमिटेशन सब नहीं इसमें आ सकता नहीं, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो होगा वो मिलिट्री पावर में। मिलिट्री।
POWs. कल क्लास होगी सर? हाँ? कल क्लास होगी या संडे में? कल का मंडे कल टेस्ट होगा ना आप लोगों का? टेस्ट नहीं है? इसी का टेस्ट। अच्छा, मैम बता देंगी, मुस्कान मैम बता देंगे आपको। मैम बोली कि आज सैटरडे को खाली ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट यू, जैसे अब हम लोग इमरजेंसी ये करेंगे ना, तो थोड़ा पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस लिख के लाएंगे आप, कि जो आपका कौतूहल क्या कहता है उसको, ठीक है, आपके मन में जो क्वेश्चन है वो लिख लेंगे, क्योंकि अभी एट अ टाइम व्हेन आई आस्क यू डोंट, बट व्हेन यू गो इन होम तो वहाँ पे क्रॉप्स ऑफ डाउट स्टार्ट क्रॉपिंग अप, सो यू स्टार्ट राइटिंग दैट। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।